Hello students, good evening. Let us begin with the next chapter, Unit 12, Aldehydes, Ketones and Carboxylic Acids. These are very important compounds, very useful in our routine life also. First of all, let us have an introduction with these three families, aldehydes, ketones and carboxylic acids. These are commonly called carbonyl compounds. Why carbonyl? Because their functional group is carbon monoxide. You know, carbon monoxide, an inorganic compound, it can act as a ligand in coordination compounds also. There also it is called carbonyl ligand, carbonyl compounds we have learned. And carbon monoxide also comes as a functional group in organic radicals. Okay, so it is a family of organic compounds, carbonyl compounds. The families are aldehydes, ketones, carboxylic acids, and there are four derivatives of carboxylic acids which are also carbonyl. They are also having carbon monoxide. First of all, let us see the structure of carbon monoxide. Carbon has 4 electrons in valence shell. Oxygen has 6 electrons in valence shell. Total 4 plus 6, 10. So if we make a double bond here and two lone pairs on oxygen, 2 to 4 to 6 to 8 and 2, 10. These are two unpaired electrons. So this is carbon monoxide. Octet is not satisfied. Last year in 11th class, you explained Lewis dot structure of carbon monoxide. There what we do, we make a triple bond between carbon and oxygen, 2 to 4 to 6 electrons, to 8 and to 10, and put positive and negative charge here. In this way we satisfy it and we say that there is resonance. All properties of carbon monoxide molecule cannot be explained by one structure. We have to draw two structures. These are resonating structures. This is it. Okay. So now let us see this structure, carbon monoxide, double bond between C and O, two lone pairs of electrons on oxygen and two unpaired electrons on carbon. These unpaired electrons are available for bonding, and this will act as a functional group in carbonyl compounds. Okay, now if one of the valency is satisfied by alkyl or aryl radical and the other valency by an H atom, then this is aldehyde. This is aldehyde family. Okay. Similarly, if both these valencies are satisfied by alkyl or aryl radical, means no H atom is there. When none of the valency is having H atom, then this is ketone family. So this is the little difference between aldehyde and ketone. Aldehyde is having at least one H atom on one of the valencies of carbonyl carbon, but ketone does not have any H, both alkyl or aryl radicals. So aldehyde family, ketone family. Let us discuss about their naming. As per IUPAC system, aldehydes are named as alk, AN, AL.
This is prefix. Prefix depend upon number of C atoms. We will count number of C atoms including this C also. कार्बोनिल के C को बीच में काउंट करके R के कार्बन काउंट कर लेंगे. टोटल कार्बन कितने हैं? एल्क बन जाएगा मिथ, इथ, prop, but, pent, like this. If this R is also H, ये दोनों H भी हो सकते हैं. If this R is also H, this is H, only one C will be there, and that will be methanol or formaldehyde. Okay. Now, An is the root word. Carbon-carbon bonds, if all bonds are single, then An. If there is a double bond, En. If there is a triple bond, Yn. And also, we have to give its position. कि वो डबल बॉन्ड सपोज हेक्स है, 6 कार्बन की चेन है, तीसरा बॉन्ड, दिस इज फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड सपोज डबल है तो हेक्स 3En, या तीसरा बॉन्ड ट्रिपल है, हेक्स 3Yn, लाइक दिस. और सफिक्स है अल, Al, तो पूरा नाम अल्डिहाइड का आईयूपैक नेम बनेगा एल्केनल. ओके. एंड वन थिंग यू मस्ट कीप इन माइंड, that because one side of this carbonyl carbon is having H, so this carbon will always be first carbon. That means aldehyde groups are always terminal. And aldehyde की preference होती है कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ दो तो बाकी जितने भी आपके सिलेबस में हैं फैमिलीज, फंक्शनल ग्रुप्स, उन सब में प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे टॉप पे अल्डिहाइड का है कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ के. ओके. तो ये टर्मिनल ग्रुप है, इट इज ऑलवेज वन. ठीक है. अल्डिहाइड का भी मोर देन वन हो ही नहीं सकता. क्लियर. नाउ लेट अस डिस्कस कीटोन्स. कीटोन में दोनों साइड पे आर है. अब आप समझ गए कि कीटोन ग्रुप कभी टर्मिनल नहीं हो सकता. अल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल, कीटोन कभी टर्मिनल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों साइड पे आर है और R में एटलीस्ट वन कार्बन तो होगा ही होगा. ठीक है. तो जो सबसे स्मॉलेस्ट कीटोन होगा उसमें एक कार्बन तो कार्बोनिल का, एटलीस्ट वन इसमें, एटलीस्ट वन इसमें, तो टोटल 3, यानी कि प्रोप. तो प्रोप से नीचे कीटोन बन ही नहीं सकता. ओके. तो ये सारे कार्बन की चेन कंटिन्यूअस है, ये काउंट कर लेंगे, एल्क बन जाएगा. देन ये सीसी बॉन्ड देख के रूट वर्ड An, En, Yn बनेगा और सफिक्स इसका बन जाएगा ऑन, एल्केन ऑन, एल्केनॉन. ये रूट वर्ड जो है डिपेंडिंग अपॉन बॉन्ड डबल है, ट्रिपल है, En, Yn हो सकता है. ठीक है. तो एल्केनॉन बनेगा और साथ में नंबरिंग देनी पड़ेगी क्योंकि कीटोन कभी भी वन नहीं हो सकता है ना. तो वो जो भी उसको पोजीशन मिलती है दैट यू नो. क्लियर. So these are aldehydes and ketones. These are carbonyl compounds. Common चीज दोनों में क्या है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप. अब हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उनके 4 डेरिवेटिव्स. इन पांचों में भी जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोनिल ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड ही है. लेट अस सी. So general formula of carboxylic acid is देखो अल्डिहाइड कीटोन का एक जो ये हो गया कार्बोनिल, एक वैलेंसी पे अल्काइल लगा दिया, एक वैलेंसी पे हाइड्रोक्सी लगा दिया, तो कार्बोनिल हाइड्रोक्सिल बन गया कार्बोक्सिल. इसलिए इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि ये इसकी नेचर एसिडिक है. ओके. अब नेमिंग कैसे करेंगे? कार्बन की चेन काउंट कर लेंगे, एल्क, रूट वर्ड डिपेंडिंग अपॉन बॉन्ड An, En, Yn पुट करेंगे एंड सफिक्स इज ओइक एसिड. एल्क प्रेफिक्स An रूट वर्ड ओइक एसिड
ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का रूल फॉर आईयूपैक नेमिंग। नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है भाई। तो वो 4 डेरिवेटिव्स में से जो फर्स्ट डेरिवेटिव है दैट इज एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड में क्या करते हैं कि सी डबल बॉन्ड और कार्बन मोनोऑक्साइड एक तरफ है, एक तरफ OH। OH को हैलाइड से रिप्लेस कर देते हैं। OH भी नेगेटिव रेडिकल है, हैलाइड भी नेगेटिव रेडिकल है, नेगेटिव को नेगेटिव रिप्लेस कर ही सकता है। तो RCOX, X की वैल्यू ClBrI, यू नो, ठीक है। एसिड हैलाइड नेमिंग कैसे करेंगे, ये कार्बन काउंट करके एल्क रूट वर्ड लगा के ANENYN OYL देन हैलाइड मीन्स क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, व्हाटएवर। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। सेकंड डेरिवेटिव होता है एसिड अमाइड। अगेन RCO वही और X को रिप्लेस कर दिया NH2 से, NH2 नेगेटिव। जब OH था कार्बोक्सिलिक एसिड था, OH को रिप्लेस जब X से किया तो एल्कानोइल हैलाइड एसिड हैलाइड बन गया। जब NH2 से किया, NH2 नेगेटिव से, तो वो बन गया एसिड अमाइड। ओके, एंड नेमिंग कैसे करेंगे, ये कार्बन की चेन दिख रही है आपको, एल्क बनेगा, रूट वर्ड आप ANENYN बना लोगे नंबर देके पोजीशन का, और एंड पे इसका सफिक्स है अमाइड, अल्केनामाइड। ओके, ये इसका आईयूपैक नेम बन जाएगा। इसका एल्कानोइल हैलाइड, इसका अल्केनामाइड। दिस इज सेकंड डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखते हैं थर्ड डेरिवेटिव। ओके, थर्ड डेरिवेटिव है ईस्टर्स, ईस्टर फैमिली। ये ईस्टर्स क्या होते हैं, एक आपको याद होगा ईथर्स, वो अलग फैमिली है। ईथर्स वी हैव लर्नड इट, है ना, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स आपने कर लिया। ये ईस्टर्स है, ईस्टर्स आर फ्रूटी स्मेलिंग, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स, ठीक। ईस्टर्स भी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड था RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, बस H को रिप्लेस कर देते हैं अल्काइल या एराइल से। इट कैन बी अल्काइल एलिफेटिक और एराइल एरोमेटिक। ओके, अच्छा, अब इसकी नेमिंग में थोड़ा सा एक्स्ट्रा, वो क्या कि एक तो ये कार्बन की चेन जा रही है, ये O आ गया, देन ये फिर कार्बन की चेन शुरू हो गई। So there are two chains of carbon atoms. These two chains are not continuous. O is disrupting it. Okay. So we have to use alk word twice. Alk word 2 बार यूज करना पड़ेगा। अब दोनों चेन्स में कार्बन सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लिखना पड़ेगा एल्क 2 बार, ठीक। अच्छा, पहले इसको लिखेंगे। देखो, इन दोनों चेन्स में एक डिफरेंस भी है, क्या, इसमें RO के साथ बॉन्डेड है, मतलब जैसे ईथर में होता है ROR, दिस इज इथरियल अल्काइल रेडिकल, ये इथरियल है, ये ऑक्सीजन इथरियल है, ईथर जैसा है। लेकिन ये C डबल बॉन्ड हो, ये कार्बन मोनोऑक्साइड वाला कार्बोनिल है, ठीक है। तो एक R जो है वो कार्बोनिल कार्बन पे लगा है, O पे नहीं लगा। एक R जो है वो O पे लगा है। पहले हमने उसकी नेमिंग करनी है जो O पे लगा है, दिस वाला। तो दिस इथरियल O वाले अल्काइल को हम अल्काइल ही बोलेंगे, एल्क बना के YL, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, व्हाटएवर। ओके, और जो ये कार्बोनिल और R है, ये सारी चेन कंटिन्यूअस हो गई, ये सारे कार्बन काउंट करके एल्क, देन रूट वर्ड ANENYN पोजीशन का नंबर देके
देन सफिक्स इसका OATE, अल्काइल अल्केनोएट। जैसे ये CH3 हो, ये भी CH3 हो, ये बन गया मिथाइल, ये मिथ और एक और इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। समझे? यहां बेंजीन होती तो बेंजाइल इथेनोएट, यहां बेंजीन होती तो मिथाइल बेंजोएट। You can practice. There are so many examples in your books. Okay. चलो, लास्ट जो डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसे बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मीनिंग होता है विदाउट वाटर। जब कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर लूज कर दे तो उसको हम बोलेंगे एनहाइड्राइड। ठीक है? व्हाट वी डू, कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स देखो, RCOOH, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल RCOOH, दूसरा मॉलिक्यूल। When we heat it in presence of some hygroscopic agent like P2O5, Al2O3, हाइग्रोस्कोपिक एजेंट वो होते हैं जो मॉइस्चर को, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है? तो अगर हम कोई हाइग्रोस्कोपिक एजेंट लेके हीट करें किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को सूटेबल टेम्परेचर पे, तो दो मॉलिक्यूल एसिड के मिलके वाटर लूज कर देते हैं, और वो जो हाइड्रोस्कोपिक एजेंट है वो वाटर एक्सट्रैक्ट कर लेता है। कैसे? सपोज इस मॉलिक्यूल का OH और इसका H, -H2O। नाउ क्या बनेगा ये? RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल डबल बॉन्ड OR। ठीक है? इन शॉर्ट अगर हम लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि RCO ट्वाइस O, ये O दोनों में कॉमन है, RCO ट्वाइस O, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड। अब देखो ये दोनों आर सेम है अगर हम एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं, बट if we have mixed two different carboxylic acids together, तो दोनों आर डिफरेंट भी तो हो सकते हैं, है ना? तो जब हम दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स का मिक्सचर बना लेंगे इक्विमोलर, उसमें हाइग्रोस्कोपिक एजेंट डाल के उसको हीट करेंगे, तो फिर हो सकता है जो एनहाइड्राइड बने उसमें दोनों सेम मॉलिक्यूल का एनहाइड्राइड बने, या हो सकता है डिफरेंट का भी बने। डिफरेंट का हुआ तो R डैश डिफरेंट होगा। अच्छा, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? इसकी नेमिंग ऐसे करेंगे कि अगर तो दोनों अल्काइल रेडिकल सेम है, ठीक है, इफ बोथ अल्काइल रेडिकल्स आर सेम, देन एल्क बना के रूट वर्ड लिख के ओइक एनहाइड्राइड। सपोज दिस इज मिथाइल, दिस इज आल्सो मिथाइल, मिथ और एक Ca मिला, इथ हो गया, ये भी इथ हो गया, तो इसका नाम बना इथेनोइक एनहाइड्राइड। हम इथेनोइक एक ही बार यूज करेंगे। एनहाइड्राइड कहने का मतलब ये है कि दो मॉलिक्यूल्स ने मिलके एक वाटर लूज किया है। ओके, बट अगर सपोज ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ये इथाइल तो ये C मिलके ये प्रोप हो गया, ये मिथ है तो ये इथ हो गया, अब ये प्रोपाइल और मिथाइल और इथाइल, सॉरी, तो अब हम इसको बोलेंगे इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, बट इफ बोथ आर इथ then ethanoic anhydride, both are prop then propanoic anhydride. Okay, so this is carboxylic acid, these are four derivatives of carboxylic acid.
These 5 families are also carbonyl compounds because these also have carbon monoxide carbonyl functional group. तो इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होने वाली हैं, काफी कुछ सिमिलर होगा, डिफरेंसेस भी होंगे ऑफ कोर्स, बट इनको हम इकट्ठा इस चैप्टर में इसलिए पढ़े हैं क्योंकि अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, ईस्टर्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स, these all contain carbonyl functional group. Okay, so now you can practice different names. You can solve examples from your books of nomenclature. Some tedious examples are also there. One more thing, many aldehydes and ketones have their common names because I told you these are very useful compounds. Like जैसे आजकल सर्दियों में दालचीनी बहुत यूज होती है चाय में, यू नो दालचीनी, सिनेमन, वेजिटेबल सब्जियों में, दालों में और चाय वगैरह में भी दालचीनी यूज करते हैं. जो दालचीनी होती है दैट इज एन एल्डिहाइड, नेचुरल कंपाउंड है, उसमें भी ये फंक्शनल ग्रुप COH है. एंड यू नो व्हाट इज इट्स फार्मूला? इट इज दिस कंपाउंड. तो इसका IUPAC नेम आप बना सकते हो बाय यूजिंग रूल्स, बट इसका कॉमन नेम होता है सिनेमल्डिहाइड. सिनेमन में होता है. ओके, ऐसे ही वेनिलिन एक एल्डिहाइड है, वेनिलिन बीन्स में होता है, वेनिला फ्लेवर जो आप बोलते हो उसमें वेनिलिन एल्डिहाइड है. सो मेनी अदर एल्डिहाइड, मस्कॉन कीटोन है, सिवेटोन कीटोन है. दीज आर फ्लेवरिंग एजेंट्स, फ्रेग्रेंस भी होती है इनकी, तो ये परफ्यूमरी वगैरह में भी यूज होते हैं. ठीक है, तो इनके कॉमन नेम ज्यादा यूज होते हैं, तो यू कैन डू दैट फ्रॉम योर बुक्स. नाउ लेट अस मूव अहेड. तो अब हमको इनकी केमिस्ट्री पढ़नी है, इन सभी कंपाउंड्स की. तो सबसे पहले वी मस्ट लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. तो जो इनमें मेन ग्रुप है जो इसकी केमिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करेगा वो है कार्बोनिल. तो एक बार फिर से देखो कार्बोनिल. ठीक है, डबल बॉन्ड मीन्स वन बॉन्ड इज सिग्मा, other bond is pi, and this carbon is forming two single bond means sigma bond, this sigma bond with oxygen and one pi bond with oxygen. That means this carbon is sp2 hybridized. तो जब कोई कार्बन एटम 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, you know it gets sp2 hybridized, and sp2 hybridized carbon is planar. ओके, ये सारा कुछ इसी प्लेन पे है और ये तीनों एंगल भी अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्रीज के हो जाएंगे. ओके, और अगर हम इसकी ऑर्बिटल पिक्चर को थोड़ा डिटेल में देखें, जैसे आपने लास्ट ईयर पढ़ा 11th में, अल्कीन में भी पढ़ा था, अल्कीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था, तो ये सिग्मा बॉन्ड बना बाय एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. पाई बॉन्ड मींस कि जो कार्बन का अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन का, दे आर अंडरगोइंग साइड वाइज ओवरलैपिंग फ्रॉम अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, दो जगह पे ओवरलैपिंग होती है बट ओवरलैपिंग बड़ी लेस इफेक्टिव होती है. सो पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड. ठीक, एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर बनता है, एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे बन जाता है, बिल्कुल जैसे अल्कीन में होता है. बट एक डिफरेंस भी है, वो डिफरेंस ये है कि ऑक्सीजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. सो जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा दैट विल बी मोर टुवर्ड्स ऑक्सीजन, मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन. तो हम कह सकते हैं कि जो कार्बोनिल का बॉन्ड होगा ना वो पोलर होगा. कार्बन एटम विल बी हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज and oxygen will be having partial negative charge.
ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की टेंडेंसी होगी पाई बॉन्ड को अपनी तरफ वाइंड अप करने की। तो O नेगेटिव होने की टेंडेंसी है, कार्बन पॉजिटिव। यही इसकी केमिस्ट्री का आप कह सकते हो मेन थीम है। जब हम केमिकल रिएक्शंस करेंगे तो उसमें बार बार यही चीज इन्फ्लुएंस करेगी केमिस्ट्री को, केमिकल रिएक्शंस को, एक पोलर नेचर ऑफ कार्बोनिल बॉन्ड। नाउ if we compare this carbonyl double bond with double bond of alkenes, एल्कीन में आपको पता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, उसमें भी एक बॉन्ड सिग्मा होता है, एक बॉन्ड पाई होता है। उसमें भी कार्बन के अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, एक क्लाउड ऊपर बन जाता है और एक क्लाउड नीचे बन जाता है। तो सिमिलैरिटी दोनों बॉन्ड्स में क्या हो गई? सिमिलैरिटी ये हो गई कि दोनों में कार्बन sp2 हिब्रिडाइज्ड है, बोथ आर प्लेनर। sp2 जब होगा तो प्लेनर ही होगा। तो बोथ एल्कीनिक डबल बॉन्ड एंड कार्बोनिल डबल बॉन्ड इन्वॉल्व sp2 hybrid C atoms, number one. Number two, both alkenic and carbonyl double bonds are planar. Okay. Number three, both can undergo addition reaction. क्योंकि डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है, addition reactions they can show. Okay. And both have a pi electron cloud above and below the plane of molecule. pi bond है। तो ऐसे 3-4 similarities you can understand. बट डिफरेंसेस क्या है दोनों में? डिफरेंसेस ये है, नंबर वन, एल्कीनिक डबल बॉन्ड इज बिटवीन सिमिलर कार्बन एटम्स, दोनों कार्बन है, सेम है। बट कार्बोनिल डबल बॉन्ड इट बिटवीन डिफरेंट एटम्स, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। सो कार्बोनिल डबल बॉन्ड इज बिटवीन डिफरेंट एटम्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। सेकेंडली, carbonyl double bond is polar, alkenic bond was non-polar. ओके। एंड एक और डिफरेंस बनेगा वो ये कि जब ऑफ कोर्स एडिशन रिएक्शंस तो कार्बोनिल भी करेगा, अल्कीन भी करेगा, लेकिन जो एडेंडम होगा, जो ऐड होने के लिए आएगा, जो अटैकिंग रीजेंट होएगा, वो पहले अटैक कौन करेगा? अल्कीन में वो करता है इलेक्ट्रोफाइल, एंड कार्बोनिल्स में अल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में वो कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि अल्कीन्स में ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, तो इलेक्ट्रोफाइल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। ओके। बट कार्बोनिल में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट कौन होएगा? न्यूक्लियोफाइल, जिसके खुद के ऊपर नेगेटिव है। ओके। क्योंकि अटैक तो ऑर्गेनिक रेडिकल कार्बन पे होना है ना, तो कार्बन इज पॉजिटिव। तो एक डिफरेंस ये बन गया कि एल्कीन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, बट कार्बोनिल कंपाउंड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है। सो अब हमने ये स्ट्रक्चर पढ़ ली, तो आज आप इन सभी फैमिलीज से इंट्रोडक्शन करो, अपनी बुक्स में से इनकी नॉमेनक्लेचर को और थोड़ा ब्रश अप करो, अपनी मेमोरी को कुछ प्रैक्टिस करो, कॉमन नेम्स लर्न करो। देन इन टुमारोज लेक्चर वी विल स्टडी फर्स्ट अबाउट aldehydes and ketones, their methods of preparation, then physical and chemical properties. Till then, goodbye. Thank you.